बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहज़ादे नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, बत्ती आ गई, बत्ती चली गई, गैस चली गई, गैस आ गई। हमारी सारी उम्र इन्हीं घुमन घेरियों में गुजर गई, लेकिन आज हम आपकी खिदमत में गैस या तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए एक इंतहाई कम खर्च मगर बालानशीन हल पेश करेंगे। ये मौजज़ा कैसे हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वतन अजीज़ से बेरोज़गारी के अंधेरों के ख़ात्मे का अज़्म लिए हुए मारूफ बिजनेस कंसल्टेंट, सैकड़ों नए बिजनेस आइडियाज़ के खालिक जनाब इब्ने फाजिल। अच्छा इब्ने फाजिल साहब, आज आप हमें बताएंगे कि हम गैस के बहरान पर कैसे काबू पा सकते हैं, लेकिन हजूर वाला गैस तो बाद में आएगी, पहले ये बताएं बिजली दा की करना जे? आंदियां नसीबां नाल ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਬੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਧੜੀਆਂ ਮੌਲਾ ਖੈਰਾ ਕਰਨ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਜ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਭੰਡ ਵੀ ਭੁੱਖੇ। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸੀਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਚਵਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਹਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਤੂੰ। भाई इन्होंने मूनसून वेडिंग प्लान की थी। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਚਾਹ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਵਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੁੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ पता कर ले, बत्ती क्यों नहीं आ रही? भैया मैंने 2 दिन से कॉल की भी है, भैया क्या हुआ? बकवास बंद कर भाईजान। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਕਮ ਸਾਇਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਤੋਗੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖੋਲੀ बैठा है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। मैंने 118 पे कॉल की है, उनको एप्लीकेशन दी है। अच्छा। अब कल से मुझे जवाब मसूल नहीं हो रहा। ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 115 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਮੰਗਵਾਇਆ क्यों? ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। हमने तो मार्की में शादी प्लान की थी। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪੱਖੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਵਾ ਲੈ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨ ਚੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਸੀ। बहन ਤੂੰ बहन ਵੱਖਰੀ ਬੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲ। ਲੈ ਪੱਖਾ ਚੱਲ, ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ पंडो ਹਾਂ कुछ सुनाओ हमें प्लीज। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਹਸਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਅੱਗੇ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਖੇਸ ਲਿਆ ਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਕਰ ਪੀਤ ਨਿਕਲ ਆਈ। और यार तुसी ते जाओ, बत्ती आएगी तो फिर आ जाना आप। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਗੇ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁਕਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। शक्लों ही अमीर लगता है। हैं हाँ जी, की गल करो ना, दियो खुश हो। तेरा का मतलब मैं तेरी गल सुनी नहीं है, नहीं सुनी है जाइए। मुबारक हो। ਲੈਟ ਆ हो ਗਈ। गया? 2 दिन हो गए, जंच किसी ने किया ही नहीं। ਓਏ, ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਆਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਬੱਤੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਓਏ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਗਾਣੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਕ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਤਰ ਐਟਮ ਕਰੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਕਰ ਕਰ ਤਰਾ ਭਲਾਈ ਕਰ ਪਾਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੈਰ, ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਡੈਣ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ ਆਵੇ ਕਦੀ ਜਾਵੇ, ਮਰੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ। ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਲਹਨ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪੇਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੂਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਥੋਪੀਆ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਵੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁੱਢੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਭੰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਨ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਾਜਰਾ
पता करो और तू खास आवे नहीं हमारा पार्टन है याद की थी नेटमा आपके फंक्शन के लिए याद की थी। ਇਹ ਵੇਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੇਲ ਓਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਵੇਲ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਵੇਲ ਇਹ ਵੇਲ ਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਇਹ ਵੇਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਰੇਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਰੋਂ ਡੱਬਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰੇਲ भाई इस गल दा दुख नहीं भाई बिजली नहीं आ रही लेकिन इस गल दी खुशी है भाई बंडा दे मामले च ਅਸੀਂ खुद कफील आ ਆਏ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਪੁਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ भाई मैनू लगया ये चबल लोग ये कूड़न असल बंड तो तू है यार ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਬੰਡ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਦਮ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਭੰਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਿੱਚੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡਈ ਤੱਤਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜੇ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ भाभी जिंदा है क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने अपनी शादी के और यहाँ कल से गर्मी में बैठी हुई ਯਾਰ हूँ। ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਬ ਸਜਾਏ ਨੇ हाँ देखो ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਜਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭੇੜੇ ਭੇੜੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ओ बंडा ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਵੋ ਇਹ ਪੰਡਾ ਦੀ ਬਦਵਾ ਨਾ ਜਹੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਟਰੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਣੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ पंड पुना करन आए सी तुसी ते बददुआन देन लग पे हो। ਐ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਰੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਪਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕਦ ਲਈ ਭਲਾਈ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ की कल दिन सुहाना चढ़िया सी बदल चढ़े हुए सन असी जांदे हुए बदल दी हवावां च गए आंदे हुए बारिश ने सानू वेलकम कीता है बदल खुश हो के सानू मुबारक दे रहे सन अगे घर आया ते मनूस मारा ट्रांसफार्मर कटिया गया ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ हाँ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਆਣੇ ਹਾਏ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਆਣੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਹਾਏ ਬਲਕਿ ਬੱਤੀ ਤੇ ਤਦ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਏ मुनीर याद करो वो दिन शादी से पहले जब बारिश हुआ करती थी आप खिड़की की तरफ स्पीकर का मुंह करके गाना लगाते थे अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬਰਸਾਤ में पी लेने दो ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਸਾਰਾ ਟੋਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਬੱਤੀ ਟੁਰ ਜਾਏ मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन मेरी मेहंदी का रंग ही नहीं था चढ़ा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਗਾਰਾ ਲਾ ਗਈਆਂ ਤਾਂ भाभी मेहंदी दे रंग वर्गी ते तेरे हाथ ने रंग की तू चढ़ना सी। बस बातें ना करो भाभी भाभी मैंने आपकी ना गोटा मिठाई लेनी है वे 2000 रुपए लूंगा आपसे गोटा फड़ाई हुंदा है। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਗੋਡੇ ਨੇ होती है ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਕਾ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹਮਸਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਣੇ आपके घर बिजली आती नहीं मुझे शर्म आ जाए। आते ही ताने नहीं मारने लग जाते मैं कोई वापडा च नहीं लगा हुआ मैं जितना हो रहा मैं पल्लू दे नाल हवा दे रहा ना बस पता चल गया मुझे आपका एक जनरेटर तो आप ला नहीं सके आगे क्या ही कर लेंगे। ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਨੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾ मुनीर भाई मैं भी आपकी बहन हूँ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਗਿਆ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਵਾ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਮੁਤਮਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ लो जी ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਯਾਰ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੰਗ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਵਿੰਗੀ ਸੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਾਇਆ ਪਜਾਮਾ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨੀ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ भाई मुनीर तुसी भी उदो शर्मिंदा नहीं सो रहे तुसी कह रहे सो पुष्पा झुकेगा नहीं साला अपनी बक बक बंद कर एक टाइम दे उत्ते 18 रोटियां खा जाना है सौण उठने ले तेनू 2.5 किलो दूध चाहिए लेकिन तेनू भिरा दा कोई फिक्र नहीं दफा हो जाए तू जाके बाप डालिया नु खुद लेके आ जितना खर्चा होंदा कर दे ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਡਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਟਿਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ अच्छा ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਜਾਓ ओए रीडिंग ते अब कुछ लग दिया जाए हाई एस करा के बस पन तुसी जो कहना सी कहता है हुन मैं इंज गया ते बाप डाले नु ले के ही आवांगा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ
ਉਨੀ ਦੇਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਓ, ਹੈ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਈਏ ਤੋਂ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਧਰ ਚਲੇ। मेरी गल सुन, ए शादी वाला घर है, इन्हू शादी वाला घर रहन दे, ओ ना होवे लड़ाई वाला घर बन जाए। ओ यार कुछ ऐसा करो मेरी बेगम दा दिल लगे। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ओ मेरी बेगम नु कुछ एंटरटेन करो, कोई माइए कोई टप्पे कोई गाने माइए। एंटरटेन करो, तेरी बीवी ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ? भाईजान बत्ती ते आंदी रहेगी ते चलो टप्पे टुप्पे गाने हैं। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ, ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ नहीं ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਮਾਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਖੇਸ ਵਜਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਵਟਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। मुबारक ਕੋਈ ਮਨੂਸਤ ਲਾ ਨਾ ਦੇਈ ਓਏ। मैं बापदा वाले नु मिल के आया। अच्छा उन्होंने क्या 2 दिन के अंदर अंदर बत्ती आ जाएगी। हाय अभी वापस चढ़ जा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा और रिमोट से दूर रहिएगा। अच्छा इब्न फाजिल भाई, हम बचपन से सुनते आए हैं कि फलां चीज़ से बिजली बन सकती है, फलां जो है वो एनर्जी के मतबादल ज़राए गाँव में, देहात में, शहरों में, फलां मुल्क ने फलां चीज़ से बिजली पैदा कर ली। हम गन्ने के फोक से सुन रहे हैं, गोबर से सुन रहे हैं। कई कहते हैं कि जी बीवी की तेज़ चलती हुई ज़बान से भी बिजली बन जाती है। जितने मुंह उतनी बातें। बहरहाल मैं कोई जिम्मेदारी से बात नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल जितनी बीवियां उतनी बिजली। जितनी बिजली और जिस बंदे के घर ब्याह के जो अपना बीवी आई ना, तो उन्होंने इतने गाना गाया ਸੀ, हमारे गांव में बीवी आई है। लेकिन इब्न फाजिल भाई बताएं प्रैक्टिकली ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे गांव देहात में उनकी बात करता हूँ जहाँ पे हम बचपन से सुनते आए हैं कि जी बायोगैस एक बहुत बड़ा ज़रिया है बिजली का। ये बिजली के या तवानाई के मतबादल ज़राए जो है ये क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से बिजली पैदा की जा सकती है, और कौन से ऐसे हैं जो खामखा की एवं कहते हैं ना पंजाबी में गल्ला ही बनिया ने, बिजली बनती बुनती को नहीं गल्ला ही बनिया ने। अच्छा सर जी, जो क्यों है ना, उसका तो सारे क्यों का एक ही जवाब है, वो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, शॉर्टकट टू सक्सेस। अच्छा मतलब हमने चीज़ की डेप्थ पे नहीं जाना, इल्म की डेप्थ पे नहीं जाना, एफर्ट नहीं करनी लर्न करने की, ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है बीइंग नेशन। तो वो फिर हमें फैसिनेट करता है इस तरह की कोई भी रंगबाजी जो करता है ना। और वो जो कैश करवाने वाले वो भी समझ गए हैं कि जी ये बैठ के वो ज़्यादा हिट हो जाती है। अगर कोई पानी से गाड़ी चलाने का कह देता है तो हम फौरन यकीन कर लेते हैं। वो उसके पीछे सर वही है कि जी फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल ना करना। वो पूरा मतलब एक एजुकेशन सिस्टम भी हमारा वैसा ही है, मतलब उसके ऊपर लंबी डिबेट है। जो अभी जो एनर्जी है हमारी, सबसे जो ज़रूरी बात जिसके ऊपर के पूरी दुनिया जोर देती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल यानी जो हमें बार बार मिल सकती है। ठीक, जैसे कि अभी बर्फ पड़ी, वो पिघली, वो आ गई, रिन्यूएबल, हर दफ़ा बर्फ पड़ेगी। इस तरह जो खेत से चीज़ निकलती है वो बार बार निकल आती है, तो ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है जो आपको 6 महीने बाद फिर फसल मिल जाएगी। तो उसमें से आपने दाने भी निकाल लिया, आपने एनर्जी भी हासिल की। अच्छा, हमारे पास जैसे हम गंदम की गंदम, बिजली की बिजली। और हमारी जो ये एडवाइज़र है भट्ट साहिबा मोहतरमा, ये पहले ही बता चुकी हैं कि जी काश्तकार को गंदम की कीमत उससे ज़्यादा मिल रही है जितनी बनती है। और उन्होंने इंकशाफ किया था कि जी तूड़ी भी तो आप कमाते हैं, तूड़ी से पैसे उनको तो अगर बता देंगे ना तो वो गंदम की कीमत और कम कर देंगे कि जनाब इससे तो बिजली भी निकलती है। आपको जितनी भी रिन्यूएबल चीज़ें हमारे पास आती हैं, यानी बायो मैटर जिसको हम कहते हैं, जो ज़मीन से निकलता है उसके बाद उससे हम जाहिर है कि बर्न करते हैं, सादा तरीन तरीका। देहात में खाना उस पर पकता है, सारे काम जो उसी पे होते हैं। अच्छा, उससे जो आपको एवरेज एनर्जी जो उसके अंदर पोटेंशियल है और जो हम हासिल करते हैं लकड़ियाँ जलाने से, वो उसका सिर्फ 15% है। अच्छा। यानी आम लकड़ी अगर हम या पत्ते या बुरादा या कोई भी चीज़ है उसको अगर हम पकाने के लिए बर्न करते हैं तो जो उसके अंदर पोटेंशियल है एनर्जी देने का, उसका सिर्फ 15% यूटिलाइज होता है। यानी हम अगर गांव देहात शहर किसी भी जगह पे लकड़ी जला रहे हैं, तवानाई हासिल करते हैं, हम लकड़ी जला कर भी उसमें मौजूद 15% एनर्जी तवानाई जो है वो यूज कर पाते हैं। एग्जैक्टली, और 85% जाया हो जाती है। 85% जो है वो जाया हो जाता है। अच्छा, इसमें अंडरस्टैंड करने की ये बात है
कि हमने अंडरस्टैंड कुछ नहीं करना। नास्टैंड करना है। हम तो लगे रहेंगे जी, हम दरवाजा खटकाते रहेंगे, कोई ना कोई तो खोलेगा। अच्छा, इसमें सर जो सॉलिड लकड़ी होती है, यानी कि जो दरख्तों से हासिल किया आपने, उससे ये हम 15% एनर्जी हासिल करते हैं। जो आप कपास की जैसे छटियाँ हो गई या इस तरह की और जो सॉफ्ट चीज़ें हैं, बुरादा हो गया या पत्ते हो गए, उसमें से इससे भी कम है, 10% एनर्जी मिलती है। अब करना क्या है, यानी कि अगर हम इसको 10% को 70-80% पे लेके जाना चाहते हैं, हम अपना टोटल जो फ्यूल है उसकी इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं, या उसकी यूज यानी दरख्त जलने ही बंद हो जाएं, इस तरह हम उससे एफिशिएंसी लें कि जो दरख्तों जलाने के लिए दरख्त काटने ही ना हमें पड़े। अच्छा, तो उसका ये बड़ा आसान सा तरीका है। और इस वक्त जो खड़े दरख्तों को आग लगा जो दरख्त खड़ों को आग लगती है ना सर, उसका भी हाल इसी के अंदर है, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसमें ये है कि ये जितना मैटर है इसको हम वुड पैलेट्स में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, वुड पैलेट्स, छोटे छोटे हाँ जी, वो जो प्रेशर में डाल के हम छोटे छोटे वो जैसे जानवरों की खुराक के पैलेट्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही मशीनों से वुड पैलेट्स बन जाए। और वो सादा सी मशीन होती है, बिल्कुल जो छोटी सी मशीन, वो बड़े सिस्टम भी बन सकते हैं, लग सकते हैं कमर्शियली, लेकिन छोटी छोटी मशीनें भी बन सकती हैं और लग सकती हैं। उसमें ये होगा, गोबर की पाथियां हम बनाते थे गांव देहात में, अब वो गोबर के भी खुश्क करके हाँ जी, उनके भी पैलेट्स बनाए जाते हैं। पैलेट्स भी बनाते हैं, ब्लॉक्स 20-25 हज़ार की मशीन आती है, पूरे गांव में लगा दीजिए, सारों के लिए काफी है। सर ये देखें ना, अगर हम इस पे शिफ्ट होते हैं, मतलब ये कि हम बजाय इसके कि हम कपास की जो वेस्ट है उसको एज इट इज बर्न करें, उसको हम क्रश करके उसके पैलेट्स बना लें, तो हमारी जो उसमें से एनर्जी की रिकवरी है वो 4 से 5 गुना बढ़ गई। यानी अगर वो 3 महीने फर्ज करें या 4 महीने चलती थी, वो पूरा साल हमें एनर्जी, एक तो पूरा साल चलेगी, तो एनर्जी का उसमें से पोटेंशियल कैसे बढ़ गया? हाँ, ये जलेगा तो वही ना सर। उसमें ये है कि जब आप वुड पैलेट्स बर्न करते हैं तो उसका जो बर्निंग का तरीकाकार होता है ना, उसके लिए एक स्पेशल इन्होंने आजकल गैसीफायर स्टोव उसको बोलते हैं, चूल्हा जो है, स्टोव आए, चूल्हे आए, 3000 से लेके 5-6 हज़ार तक। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत स्टेनलेस और वो धुआं भी लकड़ी की तरह नहीं देते हैं, सब बड़े साफ सुथरे हैं। देखिए मल्टीपल फायदे कितने हैं कि एक तो सबसे पहले पोल्यूशन बिल्कुल गई, यानी वो कंप्लीट कंबस्शन हो गई उसमें से ना आंखों में धुआं पड़ रहा है, जैसे वो खवातीन वो फूंक मारती हैं और कभी आंखों में धुआं, अपनी आंखों में नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि खातून के हाथ में फूकनी आई होती है, सबसे खतरनाक हथियार वो। विकी साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? फूकनियां बंद हो गई ने, फूकनियां बंद हो बड़े जमाने च हुंदियां सन, फूकनी, चिमटा, ये सारा चूल्हे से नहीं, चूल्हे से रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫੂਕਣੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੂਆਂ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, सही बात है। अच्छा, दी अल्टीमेटली ये चीज़ एनवायरनमेंट में जा रही है ना, तो फिर ये स्मोक और ये वो सारी चीज़ें उसका भी बायस बन, अब वो कंप्लीट कंबस्टन आपने कर ली, ठीक है। उसमें से अच्छा, आपने जो सवाल पूछा कि जी एनर्जी कैसे ज़्यादा होती है, तो उसमें ये कि इसका जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर लकड़ी जो है हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होती है गैसेस में, यानी डायरेक्ट जलने की बजाय वो गैसों में कन्वर्ट होती है। वो अंदर जब गर्म होती है 700-800 डिग्री पे, अच्छा, पहले वो गैसीफाई होती है। हाँ जी, गैसीफायर स्टोव इसीलिए इसको कहते हैं कि वुड जो है वो गर्म होके गैसों में कन्वर्ट होती है और वो गैस बर्न करती है, तो इस वजह से वो ज्यादा अमाउंट उसमें से फिर गैस। और ये जो चूल्हा है इसकी कीमत 3 से 5 हज़ार से लेके बहुत अच्छा जो 8-9 हज़ार तक, जिसमें वो कंट्रोल वगैरह सारा लगा होता है, और वो बिल्कुल गैस के चूल्हे की तरह आप उसको आस्ता भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, यानी। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि अगर आप उसमें ये वुड पैलेट्स जो हैं, ये आप तकरीबन 750 ग्राम उसमें डाल दें तो वो पूरे घर का खाना आप उसमें पका सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 750 ग्राम, हाँ जी, तो वो पूरा उसमें पूरा एक टाइम का, यानी पौना किलो लकड़ी, इतना लकड़ी का इतना सा टुकड़ा जो है पौना किलो, वो काफी है पूरे घर का एक टाइम का खाना। यार, ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है। अच्छा, अब कमर्शियली भी इसका यूज़ हो सकता है और हो भी रहा है। लाहौर में तो कम से कम है, कराची में बड़े शहरों में आस्ता आस्ता ये यूज़ होना शुरू हो गया। वो जो वुड पैलेट्स बनाना है उसकी जो मशीन है वो भी तो लेनी पड़ेगी ना? डेफिनेटली। वो कितने तक का खर्चा है अगर सब गाँव वाले या मिल के ले लें? तो उसमें ऐसे है कि जिस तरह मैंने उसका ये कंसेप्ट दिया था कि जैसे गांव में वो एक जगह पे वो लगा होता है ना जी, मुख्तलिफ मल्टीपल चीजें, जैसे वो बेलना लगा हुआ है, उसमें वो रुई पेंजा, इस तरह एक मशीन वहाँ पे 2-4 लोग बेशक मिल के लगा ले, एक बंदा लगा ले। वो जो छोटी मशीन है वो 6 से 10 लाख के दरमियान में आ जाती है। अच्छा, ठीक है। और जो बड़ा सिस्टम है वो 25 से 50 लाख में आ जाता है, जो ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा, यानी 500 kg पर आवर से लेके
और 700 kg पर आवर तक जो मशीन है, सिस्टम है, जो 8-10 टन पर डे तो बना हम ये जो करते हैं जनाब, फलां स्कीम, फलां प्रोग्राम, रिक्शा, टैक्सी, फलाना, उसकी जगह अगर ये हम अपने गांव देहात में कर दें, ये ऐसा कितना काम बड़ा है। एहसान होगा कौम पे। सर ये ऐसा काम है कि आपकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है फ्यूल की, बाकी मतलब सिर्फ वेस्ट से इतना फ्यूल मिल जाएगा आपको कि आपको किसी भी तरह से दरख्त काटने ही नहीं पड़े। अच्छा, दरख्त के जो यानी नकारा लकड़ी, आप समझ लें, नकारा लकड़ी के साथ कुछ कोई चीज़ मिक्स करनी पड़ेगी, पानी? बिल्कुल कुछ नहीं मिक्स करना। अच्छा, हाँ जी, वो जो सिर्फ आपने उसको कटिंग करनी है, यानी एक कटर होता है जो उसको फाइन कर देगा, जो छटियाँ वगैरह या जो भी उसमें पत्ते हैं कुछ भी है, वो उसको पाउडर शक्ल में, पाउडर से थोड़ा मोटा उसको वो बना, एक कटर, और दूसरी मशीन होती है जो उसको प्रेस करके सूखे पत्ते और लकड़ी मिक्स होगी। हाँ जी, पत्ते सूखे, यानी जो भी बायो वेस्ट है उसको आप ब्लेंड करके मुख्तलिफ चीज़ों को आप करके वो कर सकते हैं। इवन जो बगास है ये गन्ने की, उससे भी आप पैलेट, गन्ने का फोक, छिलका, जी, सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमें फॉग का मसला दरपेश होता है, हम वो कहते हैं कि जी ये फसलों की बाकियात को आग लगाई है, तो उसकी वजह से होता है, तो उससे भी बच जाएंगे। उससे से वही सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। वो आपका बर्निंग में चला गया, एलपीजी का आपका बजट कम हो गया, उसके ऊपर भी लोड कम हुआ, आपने एलपीजी को भी रिप्लेस कर दिया, आपने दरख्त काटने को भी रिप्लेस कर दिया। अच्छा इब्ने फाजिल साहब, आप ये तो कोई जादू नगरी की बातें करें कि सारी एनर्जी, सारी हर चीज का आप सोल्यूशन ही बता दिया। अब आप जरा हमारे सवाल की तरफ भी आए ना। अच्छा चले, इनका भी सोल्यूशन निकालते हैं आपके। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर बेगम नाराज हो जाए तो इन्हें मनाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगे बेगम आज किचन मैं संभालूंगा, आप आराम करें। हाँ, और किचन में वही पैलेट, वुडन पैलेट जलाएंगे, वुड पैलेट। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे बेगम मेरे पास बुर्ज खलीफा खरीदने का फॉर्मूला है, आपके भाई को बताऊं या आपके अब्बा जी को? ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगे बेगम मैं सोच रहा था शॉपिंग करने चलें। ऑप्शन नंबर 4, या फिर रोमांटिक गाना गाकर बेगम का दिल बहलाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है 3 नंबर ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो सबसे सही तीर बातम नुस्खा है। ये सिर्फ कहेंगे या लेकर भी जाएंगे? नहीं, लेके भी जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? बहुत सारी जब एक दफा कह दिया तो फिर बेगम छोड़ दी। दुनिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बरस रहा है रंगो नूर, महफिल ये शाद है। बरस रहा है रंगो नूर, महफिल ये शाद है, खुशियों का ये जहां आपसे आबाद है। वाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुशाबा है और मैं एक गजल सुनाने लगी हूँ। मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ए मेरे हमनशी, जान किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे हो के मुड़ के भी देखा नहीं। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमने पुकारा नहीं। ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। अच्छा भाईजान एक बात तो बताइए, शायर जो है वो देखो मुआशरे से खुश नहीं है, शौहर बीवी से खुश नहीं है, बीवी शौहर से खुश नहीं है, बच्चे माँ बाप से खुश नहीं है, एंजॉय कौन कर रहा है? इसीलिए तो पूरी कौम जो है वो गैर मुल्की सफारत खानों के चक्कर काट रही है और यही नगमा गाती हुई नजर आ रही है, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। नहीं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सिमरन है और मैं शेर सुनाऊंगी। मेरा नाम राज है और मैं शेर सुनूंगा।
जा सिमरन सुना ले अपना शेर। अमरीश कुड़ी। जी। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत में आजमाने से टूट जाते हैं दिल अक्सर, ये इश्क और मोहब्बत की बातें किताबों में रहने दो। किताबों में रहने दो। वाह जी वाह। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम महनूर है और मैं शेर सुनाऊंगी। जी इरशाद। सजना जेतू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते, लोकां ने ते गली कीती, तू ते खोल खलासे दिते। बहुत अच्छे। बेटैमी भाभी को रोटी मंगी, पानों ने मेरे पासे देते, यही कहना है ना। अच्छा अगला मिसरा क्या कि नाले तो हाथ भी रखे जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। वाह। जो मिलेगा दुरुस्त जवाब देने वाले को। तो सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा शहर है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो शादी में इस्तेमाल होने वाली एक चीज बन जाती है? शकरगढ़। शक्करगढ़? तो 3 लफ्ज काट दिए, शक्कर गुड़। वो गुड़ है, गुड़ नहीं है। लफ्ज पता किस तरह काट रहे हैं? एक अद्धे इधरों काट रहे हैं, अद्धे उधरों काट रहे हैं। शादी का एक लाजमो मलजूम हिस्सा है। चलें एक और आपको हिंट दे देता हूँ कि अब वो जो चीज़ है वो मतरूक होती जा रही है, पहले तो लाजमो मलजूम था। चलें उस शहर का ताल्लुक जो है आपकी वजीर आला जो है पंजाब की, उनकी शादी से मुतालिक जो है ना वो बहुत गहरा ताल्लुक है उस शहर का। मानसेरा। मानसेरा। मान पहले 3 हरूफ काट दिए जाए तो सेहरा बनता है। और ये गिफ्ट हैम्पर आपने बड़ी कोशिश और बड़े तरद्दुद से दिया इनको, इनके लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद तारिक है और मैं गज़ल सुनाना चाहूँगा जी। कि चलो आओ अब मौसम का मजा चखें, कि चलो आओ अब मौसम का मजा चखें, तमाम दवाएं बच्चों 8 दफा चख चुका है। बाहर जाके तो गर्मी की नहीं पहन रही। कि चलो आओ अब मौसम। यार नहीं भाई चख लिया यार, अगला मिसरा मौसम से आगे मौसम का मजा चख लिया। आगे मजा केड़ा होता पहन बाद जाके कौन कहता बड़ा अच्छा मौसम है। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें, सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें, दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली, दिल मेरा। अच्छा ये नज्म जो है ना मैं मेरा ख्याल 5 साल का था, जिसने भी मैंने देखा है कि वाइट एप्रन पहना होता है ना, अभी उसका FSC क्लियर भी नहीं हुई होती, मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी नहीं हुआ होता, वो पहले ये नज्म याद कर लेता है। एनाटॉमी की बुक से कुछ नहीं याद करता, ये नज्म याद कर लेता है पहले। मेरा दिल इश्क करने पर रजामंद रहेगा, जुमे के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। चलो अरे खोले भी नहीं तो बंद भी करता है, ऐसे क्लिनिक को बंद ही रहना चाहिए। आप सबको बुलाया जाएगा, नमाज इशा के बाद उठाया जाएगा। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है, मैं शेर सुनाऊंगी। जी मलाइका। बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते, बात नसीब की थी कुछ कर ना सके। बहुत नसीब की थी कुछ कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबिंदा रियाज है और मैं ये शेर अपने बाबा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। उसे देखती हूँ तो देखती रह जाती हूँ, वो शख्स मुझे नेमत खास लगता है। बहुत अच्छे नेमत खास लगता है। सर मैं डायलॉग बोलना चाहता हूँ स्टेज पर आकर। चलें इसी को स्टेज समझ लें आप। जी बोले। इसी मूवी का डायलॉग है। जी। चिल्लाओ मत। हाँ। यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले मीरजादे जितने तुम्हारी साल भर की कमाई उतने रुपए के मेरे सर पर साबन की हवेली के फारिश हो जाते हैं। जिड्डा डायलॉग मारिया ना लख साले तेनू लभ रहे ने कि किते साडे साबन ना नहा ना लवे। डॉक्टर बन गया ते अल्लाह वालों बदकिस्मती नाल इन्हां दी वालदा दी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, कहंदा अम्मी जी तुहानू दवाई देवां, कहंदी नहीं पुत्त आपां डॉक्टर कोई चलदे। एक जगह ते रंग दा ठेका मिल गया ते उन्हां दी अम्मा ने कहा पुत्त वाशरूम भी रंग करना, कहंदा मैं ठेका नहीं लिया। लेंस पा के सुरमा पाउण लगा, लेंस ही पीछे चला गया।
ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। बहुत सारी तालियां जी। तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। एक तो आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। इस गेम के बारे में आप जानते हैं ना? मैं बोलूँगा, जिस चीज़ का नाम लूँगा आपने उसको उठाना है, और जो जल्दी उठाएगा वही जीतेगा। ये जीरा कोला जो हमारी स्पेशल बोतल है, ये मैं रख देता हूँ, जो इसको उठाएगा उसके पॉइंट ज़्यादा हैं। 1 2 3 खीरा, स्पंज, गुड गुड, वेरी गुड। टेप, ये चीज, प्याज, वैसे जुनेद भाई प्याज बंदे को फंबल बहुत करता है ना? हालांकि कटा नहीं हुआ तो फिर भी आंखों में पानी आ गया। शलजम, हाँ अच्छा, एक दूसरे को चौक दे दे अपने अपने जो सामने पड़ी। और गाजर, हरी मिर्च, टमाटर, क्या कितना टमाटर, लीमू। जब कार से उठाने गया, हाँ जी, बोतल पानी की, जीरा कोला, शिमला मिर्च, आप जीत गए। 1 2 3 4। अब मैंने कहा था इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अब देखो हरी मिर्च तो तू ही काट देता मुझे, अगे तो असी रखने जोगे नहीं रहे। ले जा भाई अपनी हांडी च पा लेंगे। प्याज तो खैरियत से ना, प्याज तो कुछ नहीं हुआ। देखिए जी, अल्लाह ताला ने प्याज को बचा लिया। सब इसको प्याज से देखें। झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के आज के विनर है शेर दिल। इनके लिए बहुत सारी तालियां। दुनिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज महंगाई के इस दौर में अगर किसी के घर में महंगा चिकन पक जाए तो वो किस तरह की खुशी महसूस करता है, यही बात आपको सुनवाते हैं अपने कवालों से। हर गल ते हाँ पान लग पैना तू। पहले मैं तो 10 गाण की लगा, बुक तेन मैं की अपनी मर्जी नाल हाँ उतरना। पहले मैंने पूछना फिर गाना ही। और ਤੁਹਾਡੀ गरीबी ते सुनान लगे कवाली। गरीबी ते गान लगा? हाँ जी, गरीबी। ले पुत्र गरीबी चीज ही ऐसी ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है। आज तुसी काली ऐनक नहीं लाई? ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਨਕ ਤੂੰ ਲਾਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਣ ਜਾਣਾ ਨਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਨਾਈ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਟਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ, ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਾਲ ਦੇ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੈ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਾਵਾਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਾਵਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਾਵਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਾਵਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਾਵਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੁਨੇਦ ਬਾਊ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਧਾਰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂ, ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਕੁੱਕੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਖਾਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 4 ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ 2 ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਵਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਵਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੁਰਗ ਖਵਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਚਟਣੀ ਨਾ ਦਾਲ ਬਣਾਵਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਚਟਣੀ ਨਾ ਦਾਲ ਬਣਾਵਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਵੱਜ ਗਈ ਮੱਤ ਵੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਵੱਜ ਗਈ ਮੱਤ ਵੇ ਵੱਜ ਗਈ ਮੱਤ ਵੇ ਵੱਜ ਗਈ ਮੱਤ ਵੇ ਵੱਜ ਗਈ ਮੱਤ ਵੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਵੱਜ ਗਈ ਮੱਤ ਵੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਵੱਜ ਗਈ ਮੱਤ ਵੇ ਮਹਿੰਗਾ ਚਿਕਨ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇ ਮਹਿੰਗਾ ਚਿਕਨ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੋ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜੇ ਪਕਾਏ ਸਨ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜੇ ਪਕਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀਨੇ ਸੀਨਾ ਗੁੱਲੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਰਚ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਘਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਹੋਈ 800 ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਪਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਈ 800 ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਪਾਇਆ ਅੱਧ ਪਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਅੱਧ ਪਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਬਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਏ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਈ ਏ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਏ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਏ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ 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 ਹਾਂ ਕਦੀ ਪੋਟੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਦੀ ਪੋਟੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਦੀ ਪੋਟੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮੰਨ ਜਾਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮੰਨ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਲੋਰ ਫਰਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਲੋਰ ਫਰਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਲੋਰ ਫਰਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ मिल नाज़रीन ये था आज का देशबुक और आखिर में आज की छोटी सी बात ये कि शिकवे दोनों ही के दुरुस्त हैं। शौहरों का ये शिकवा कि औरतें बोलती बहुत हैं और औरतों का ये गिला कि मर्द सुनते ही कहाँ हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।